Hello everyone, my name is Vishal Pandey, and I would like to tell you something that I've done in the past few years, right before starting that. But it is so build the concept. I started trading 6 years back, right? And from that particular point of time, I started trading FNOs only, right? At that particular point of time, the futures were the hot topic, right? We had leverage in the Indian markets, right? So that was the particular point of time I got into leveraged futures or something like that. I started trading options, right? And losses, obviously, if everyone has started trading, they might be going through the same journey. It happens with everyone, all of us, right? So it has happened with me in the past, and after that, I was lucky enough to meet some smart people around me, those who were trading. They taught me a lot about the markets. They taught me a lot about the psychology, about how these kind of assets actually work, right? How options actually work, how futures actually work, the in-depth concept, right? How the liquidity in the markets actually work. And once I had that particular understanding, once I had that particular thing that, okay, this particular structure, this particular market structure, it works like this. This is the right way to approach the market, right? Things got a little easier for someone like me, right? So whatever learning I had in that particular journey, I would like to share a little glimpse of that, right? About how I personally approach the market, right? And in the next few minutes, let's say 40 to 45 minutes, I will discuss that particular thing, right? After this particular session, I would love to take some questions if you have any, right? And in that particular case, we can just go one by one, right? And after a particular session, let's say if I've told you something about liquidity, if you have some doubts, you can just ask me at that particular point of time, but it should be relevant to that particular topic, right? You can go like this, okay? So before talking a little further, right, let's move to my charts. Let's see कि liquidity मेरे अकॉर्डिंग exactly है क्या मैं इस चीज से क्या अप्रोच लेता हूँ सी each and everyone has have their own approach markets को लेकर उनका अपना अपनी approach होता है एक अपना तरीका होता है एक अपना perspective होता है right और मैं अगर ये चीज बोल रहा हूँ तो there's a reason behind it right let me show you that particular thing on charts right in this particular area, market is continuously on the downward move. It's in the downward trajectory or something, right? तो हमें इससे क्या रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे बियर्स थोड़े पावरफुल है बुल्स के ऊपर और द सेलर्स दे आर मच मोर पावरफुल ऑन द बायर्स और समथिंग लाइक दैट इस रेंज में तो हमें ये दिखा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम राइट दिस पर्टिकुलर एरिया समवेयर देयर बट हमें ये भी पता है कि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है that one particular transaction has completed one volume has created right in any asset that means someone has bought and someone has sold that particular thing at a point of time अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पे जहां पे मेरा कर्सर है 324 के अबाउट में अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ है राइट तो वहां पे एक बायर होगा और एक विलिंग सेलर होगा और उसमें से सही कौन होगा इट डजंट मैटर मार्केट किस साइड जाएगी इट डजंट मैटर राइट इफ समवन हैज बाउट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस अगर किसी ने वहां पे अगर खरीदा है तो उनकी उनका लॉजिक और उनका थॉट्स यही होगा कि ये पर्टिकुलर एसेट यहां से और ऊपर जा सकता है तो उन्होंने अपने पोजीशंस को बाय करा है इफ देयर इज अ सेलर राइट तो उनके थॉट्स होंगे मार्केट्स को लेके कि दिस कुड बी अ बेयरिश सिग्नल यहां से मार्केट से नीचे कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में मार्केट एक मोशन ले सकती है मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है राइट तो अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर अगर एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो वहां पे बायर भी एक थॉट लेके बैठा हुआ सेलर भी एक थॉट लेके बैठा हुआ है राइट अब किस साइड मार्केट जाएगी दैट वुड डिपेंड ऑन द कंप्लीट मॉब जो कंप्लीट क्राउड है उसके हिसाब से ठीक है लेकिन सब किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है मार्केट को लेके तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक है अब हम आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर लिक्विडिटी एग्जैक्टली होती क्या है लिक्विडिटी को हम चार्ट्स के ऊपर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मेरा अप्रोच इस चीज को लेके क्या है एग्जैक्टली ऑन वो So, this is something that I would like to talk about. Let's say this is an area. I am putting some horizontal lines in here, 925, and this is the high area at a particular day, right? Let's mark this particular day, something like this.
In the first half of 12th of March, market had a little bullish behavior. Market में एक upswing आया, right? And that was a particular moment. Market में बाइंग होने के बाद एक शार्प सेल ऑफ आया. वी कैन सी दैट पर्टिकुलर सेल ऑफ राइट नाउ. ये सेल ऑफ हमने यहाँ पे देखा. एक शार्प डिप आया मार्केट में एंड एवरीथिंग वाज फाइन आफ्टर दैट, राइट. उसके बाद मार्केट में एक स्लो बाइंग आई. वी कैन सी दैट स्लो बाइंग. We can see that slow buying in here, right? A little up move, a little up move. Just imagine a lot of people would have bought, right? इस एरिया में बहुत सारे लोगों ने बाइंग करी होगी, right? मार्केट नीचे गिरी है, उनको चीजें थोड़ी डिस्काउंट में मिली, राइट. मार्केट में एक अप मूव आया, ठीक है. देन एक और अप मूव आया और इस अप मूव में आप एक चीज देखोगे कि प्रीवियस हाईज को ब्रेक किया. प्रीवियस स्विंग हाई, अगर मैं इसको एक स्विंग हाई कंसीडर करूं, राइट, तो प्रीवियस स्विंग हाईज को इसने ब्रेक करा, मार्केट उसके ऊपर गई, राइट. देन अगेन इट वेंट अप एंड इट went above the swing high of the previous, right. It went above the high of the previous swing high. तो यहाँ पर हायर हाइज के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, हम सभी को दिख रहा है, राइट. दिस हाई इज अबव दिस पर्टिकुलर हाई. यहाँ पे भी हाई क्रिएट हुआ होगा, इसके ऊपर ये हाई है, इसके ऊपर ये हाई है. Now what actually happens in this particular case? We all know that 95% those who trade F&Os in the Indian markets, they lose, they tend to lose. उनको losses होते हैं, हम सभी को पता है, right? और ये लॉसेस क्यों होते हैं, इस पर्टिकुलर अप्रोच में आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, राइट. एग्जैक्टली चीजें होती क्या है. द रीजन इज वो कंप्लीटली मूव्ड अवे हो जाते हैं मार्केट में जो फॉर्मेशंस होते हैं उसके हिसाब से. सिंपल बताता हूँ. मार्केट में अगर यहाँ पर हायर हाई के फॉर्मेशंस है, अगर हायर हाई के फॉर्मेशंस दिख रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से बुलिश है, राइट. आप किसी भी रिटेल ट्रेडर से पूछ लो जिन्होंने थोड़ी डिटेल में स्टडी करी है, राइट. मैं बिल्कुल ही बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट. राइट, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जिनको हुई है, जिन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू देम इफ मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाइज, इट्स कंप्लीटली बुलिश, राइट. दिस पर्टिकुलर वर्ड इज नॉनसेंस, राइट. चीजें हमेशा ऐसे फंक्शन नहीं करती है. लेट्स से मार्केट में इतना एक शार्प सेल ऑफ आया है, राइट. अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मेशंस कब होते, जब सी ईच एंड एवरीथिंग हैज अ कंडीशन. अगर यही फॉर्मेशंस लेट्स से मिड ऑफ द मार्केट होते हैं, मिड ऑफ द मार्केट में मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया और फिर हायर हाई के फॉर्मेशंस कर रही है, मार्केट नए हाईज के आसपास जा रही है और कुछ ऐसे फॉर्मेशंस कर रही है, तो मार्केट में बोल सकता हूँ वो बुलिश है, राइट. मार्केट अपने लोज के ऊपर ही बैठी हुई है. जस्ट सी समथिंग लाइक दिस. पिछले कुछ टाइम पे मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट में एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद मार्केट थोड़ा बहुत एक अपस्विंग ली, उसके बाद एक और सेल ऑफ आया, राइट. इस सेल ऑफ के बाद मार्केट हायर हाइज फॉर्मेशंस में लगी हुई है, राइट. मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ उस पर्टिकुलर डे पे, बट बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशन लेके रखी थी, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने अपनी पोजीशन ली होंगी. इसको देख के ऑब्वियसली जो ऑप्शंस थोड़ा बहुत समझते हैं मैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पे मोस्टली लोगों ने कॉल बाय किया होगा और बहुत सारे लेट्स से कि समन जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे अफसर में भी सी सिमिलर थॉट होगी कि आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे. ऑब्वियसली सेम थॉट्स आते हैं, राइट. बट दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर हायर हाई के फॉर्मेशंस अगर ये मिड मार्केट में आते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ पे फॉलो थ्रू ना हो पाए कंप्लीटली, राइट. अगर ये हायर हाई के फॉर्मेशंस एक नए जोन के ऊपर आते, लेट्स से एक ये रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्पली गिरी है, तो मार्केट इस रेंज के अगर ऊपर अगर ये हायर हाई के फॉर्मेशंस करती तो मार्केट के लिए बुलिश होता. बट जब ये मिड रेंज में कर रही है तो फिर ऑब्वियसली ये बड़े प्लेयर्स अपनी लिक्विडिटी को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कुछ फॉर्मेशंस करवा रहे हैं. बड़े प्लेयर्स कौन? ऑब्वियसली द प्रॉप डेस्क, राइट. सम पीपल डू नो प्रॉप डेस्क एग्जैक्टली होते क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी अपनी कैसे जनरेट करते हैं, राइट. तो बेसिकली उनको अपनी पोजीशन चाहिए. अब यहाँ पे मार्केट उनने लेट्स से पुश कर दिया सेम डे नीचे. जिन्होंने कॉल्स खरीदे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस तो बहुत सारा कुछ चलोगे, ठीक है. सेम डे पे उनके स्टॉप लॉसेस गए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉसेस बुक कर लिए कॉल में. अब क्योंकि लास्ट आवर्स में मार्केट में शार्प सेल ऑफ आया, दोबारा एक सेल ऑफ आया है, यहाँ पे आप देखो 2:05 से लगभग 2:30 के अप्रॉक्स एक सेल ऑफ आया. मार्केट लोज के आसपास में ही था और वो पर्टिकुलर डे क्लोज हो गया, राइट.
तो यहाँ पे जब दोबारा मार्केट लोज के ऊपर क्लोज हुआ, तो जब मार्केट ओवरऑल डे के लोज के आसपास क्लोज हुआ, लास्ट में भी एक सेल ऑफ आए, तो वहां पे आप सभी को पता है कि मोस्टली लोग जो इंटर करेंगे वो मोमेंटम के हिसाब से पुट वाले होंगे, पुट बायर्स होंगे, क्योंकि मोस्टली रिटेल क्राउड है। रिटेल क्राउड ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाला है, मुझे भी पता है, हमें पता है, हम सभी को पता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पे मोस्टली पुट बायर्स इंटर किए। अब दिस इज द प्रॉब्लमैटिक पार्ट। लेट्स से यहाँ पे पुट बायर्स होंगे, ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखोगे, मैं इसमें एक लाइन बना देता हूं, तो ओवरऑल डे टाइम पे मार्केट इस रेंज में ही मोस्टली ट्रेड हुई है। दिस वाज द रेंज। थोड़ा बहुत जो सेल ऑफ मॉर्निंग में आया था, मॉर्निंग में एक अपस्विंग आया था, उसके बाद जो इस रेंज को थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं फॉर टाइमिंग, राइट। दिस वाज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, राइट। दिस वाज एन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, और फिर मार्केट अगले डे पे सेम लेवल के ऊपर जाती है, इस जोन के ऊपर। लेट्स से जिन्होंने आप पुट्स बाय किए होंगे, राइट, मार्केट में उनने इस लेवल को कभी देखा भी नहीं होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डे। मार्केट जब अगले दिन इतने ऊपर गई, तो उन सबके स्टॉप लॉसेस चले गए, राइट, स्टॉप लॉसेस चले गए। आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर वर्ड टाइम एंड अगेन। यहाँ पे अगर किसी ने एक अच्छा खासा पोजीशन लिया होगा, लेट्स से मार्केट की क्लोजिंग कितनी थी, 22,334, और मार्केट की ओपनिंग होती है 22,433, समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप अप। 100 पॉइंट के गैप अप में और पर्टिकुलर डे एक यहाँ पे हम देखें, राइट, 100 पॉइंट के गैप अप्स में आपके ऑप्शन की वैल्यू मोस्टली डाई डाउन हो जाती है, राइट, मोस्टली डाई डाउन हो जाती है इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो बायर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस आ गए, उन्होंने अपनी पोजीशंस काट दी। एंड जब उनकी पोजीशंस कट जाती है, एक पर्टिकुलर साइड की पोजीशंस कट जाती है, तो फिर मार्केट दोबारा अपना डायरेक्शन ले लेता है। The players, the big players, they have got the liquidity, and what liquidity they wanted is that they wanted the put orders. उनको puts अपने buy करने थे, जो कि उनने short करके रखा हुआ था, ठीक है। उन्होंने अपने पुट्स यहाँ पे बाई कर लिए। यहाँ पे मान लो आपने एक पुट खरीदा इस पर्टिकुलर एरिया में, आप एक रिटेल ट्रेडर हो, यहाँ पे पुट आपने 100 पे खरीदा, अगले दिन 100 पॉइंट का गैप अप हुआ, अगर मार्केट ऊपर गई है तो पुट्स में आपको लॉसेस होंगे, राइट। लेट्स से आपका पुट्स उस टाइम समवेयर अराउंड 40 से 50 के बीच में ट्रेड कर रहा था, आपने पोजीशन पैनिक में आके काट दी, ठीक है। इतने बड़े गैप अप के बाद मोस्टली लोग अपनी पोजीशंस को काट देते हैं। लेट्स से आपने अपनी पोजीशन को 50 के अराउंड में काट दिया, समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया। बड़े प्लेयर्स को उनकी लिक्विडिटी मिल गई, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, राइट, उन्होंने अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिए, उन्होंने सेल किया था, उन्होंने बाय करा, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, अपनी लिक्विडिटी ली, और एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉल्स को राइट करना स्टार्ट कर दिया दोबारा, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी थी। ये पर्टिकुलर गैप अप के बाद दोबारा जो रिटेल क्राउड है उनको क्या लगेगा, गैप अप हुआ है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है प्रीवियस लेवल्स के ऊपर, तो वहां पे उसको दोबारा वो बाई करने के लिए जाएंगे। बाई क्या करेंगे, कॉल्स, राइट। और जब कॉल्स बाई करेंगे, मार्केट गैप अप है, तो फिर दोबारा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बड़े प्लेयर्स को पैसा कहां बनेगा, पुट्स में, राइट। आई मीन इफ दे आर राइटिंग द कॉल्स, राइटिंग दैट मींस दे आर सेलिंग द कॉल्स, और ऑन द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द मार्केट। पुट्स तो बाई नहीं करेंगे, पुट्स तो हम रिटेल खरीदते हैं, राइट। they'll be selling the calls, so they'll be selling around this particular area, और उसके बाद आप एक सेल ऑफ देख सकते हो, राइट। सो इस पर्टिकुलर चार्ट को दिखाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा लॉजिक क्या था, कि इस पर्टिकुलर एरिया आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट एक रेंज में रही सेकंड हाफ में 12th ऑफ मार्च को, राइट। और इस एरिया में एक बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी जनरेटेड था। जब भी लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड्स लगाते हैं, राइट, जब भी यहाँ पे मार्केट को किसी ने शॉर्ट करा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया, मार्केट को शॉर्ट क्रिएट किया, उनके स्टॉप लॉसेस इस एरिया में कहीं लाई करते हैं, इस एरिया में कहीं लाई करेंगे, क्योंकि मार्केट सेकंड हाफ में इधर कभी नहीं आई थी। तो दिस इज द लिक्विडिटी जोन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। दिस इज अ लिक्विडिटी जोन आई एम टेलिंग अबाउट। लोग के स्टॉप लॉसेस यहाँ लाई करते हैं, और मार्केट यहाँ पे अगर लोग के स्टॉप लॉसेस लेके अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, अगले दिन मार्केट ऊपर गई, सबके स्टॉप लॉसेस ले गई, जो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा था मार्केट को, मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को लिया, मार्केट नीचे आई, मोमेंटम आई। दैट मींस जब भी मार्केट इस टाइप का मोमेंटम करती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगी, स्टॉप लॉसेस लिए, मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई, और मार्केट नीचे जा सकती है फ्रीली। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर आ रही है, राइट। ये लिक्विडिटी जोन्स के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा था, राइट। थोड़ा एक दो एग्जांपल्स इसके बारे में थोड़ा और हम देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स चार्ट के ऊपर मैं 5 मिनट पे ही आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट
अब स्विंग्स आ रही थी, मार्केट अपने हाईज के आसपास ही थी, मार्केट अपने हाईज के आसपास ही थी, और जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज की फॉर्मेशंस कर रही हो, अपने हाईज की फॉर्मेशंस कर रही हो, और वहां पे आपको ज्यादा स्पाइक्स दिखे, समथिंग लाइक दिस, राइट? That means someone is booking their profits or something. They are booking their profits. The big players are booking the profits. The smart players, they are booking their profits, right? You are seeing something like this, same formations in here, right? अब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर नीचे की साइड से शिफ्ट होनी दोबारा स्टार्ट हुई, राइट? अब ये रिटेल प्लेयर्स को भी दिखती है ये चीज, राइट? रिटेल प्लेयर भी धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं, इट्स अ थिंग, राइट? ये चीजें हो रही है, तो वो भी यहाँ पे शॉर्ट, सभी लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, मार्केट ऑल टाइम हाइस के ऊपर है, राइट? ये न्यूज में मिल रहा है, बट सब लोग बाई नहीं करेंगे, कुछ अच्छे प्लेयर्स भी है, राइट? दे आर रिटेल बट उनको अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट्स उन्होंने बनाए, उनको स्पाइक्स भी दिख रहे हैं, राइट? Inverted hammer, obviously, people consider this as bearish, right? वो इसको देख के यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करेंगे, एक और स्पाइक, वो इसको देख के शॉर्ट क्रिएट करेंगे, तो दे क्रिएटेड अ रेंज, मार्केट में एक रेंज क्रिएट हुआ, राइट? मार्केट में ये पर्टिकुलर हाई अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो, इसका हाई कहीं यहाँ पे, हाई नीचे शिफ्ट हुआ, अगले स्विंग हाई का हाई फिर से नीचे शिफ्ट हुआ, वी आर सीइंग अ लोअर हाई फॉर्मेशंस इन द मार्केट, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने इस रेंज में शॉर्ट करा होगा, इस एरिया में शॉर्ट करा होगा, मार्केट के ऊपर गई थी और मार्केट के हाई को भी इसने हिट करा था, उस पर मार्केट नीचे शिफ्ट कर लिए, बहुत लोगों ने शॉर्ट करा होगा इस रेंज में, और मार्केट इसके ऊपर बहुत सारे जिन्होंने शॉर्ट करा था स्टॉप लॉसेस अपने रखे होंगे। मार्केट अगले दिन ही सबसे पहले कैंडल में, राइट, सभी के स्टॉप लॉसेस ले लेती है, मार्केट उसके बाद नीचे आती है, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? So this is how the institutions play. They have a selling zone, and to get that selling area, obviously selling को थोड़ा sharp बनाने के लिए, I mean, ज़्यादा से ज़्यादा liquidity market में लेने के लिए, they want to get the liquidity. उनको उनको पता है कि liquidity actually कहाँ lie करे, liquidity pool कहाँ पे. तो this is an area जहाँ पे बहुत सारे sellers के stop losses पड़े हुए थे. इस area में बहुत सारे sellers के stop losses पड़े हुए थे. Market इसके ऊपर गई, यहाँ पे all time high hit करा, सबके stop losses लिए. It's tough, राइट? आप बहुत बार बोलते हो ना कि आप बहुत बार आपने सुना भी होगा कि आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे कि यार मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, दिस वाज एन एरिया ऑफ माय स्टॉप लॉस, मार्केट केम डाउन, इट ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस, इट वेंट अप अगेन, राइट? मार्केट अगर थोड़ी सी स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होती तो मेरे को एक बड़ा टारगेट मिल जाता, बट मार्केट ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस एंड वेंट इनटू माय फेवर, राइट? So this is a problem that newbies are facing. The new players, those who are coming into the markets, they are facing something like this. That is the problematic part. They don't understand where to put their stops. The most important thing is that, or the institutional players, they have an understanding कि हम retail के stop losses exactly कहाँ पे पड़े हुए हैं. हमारा stop loss pool, हमारा crowd, जो हम पूरे crowd है retail crowd का, हमारा stop losses कहाँ lie करता है. They have an idea about that, right? तो they'll try to trigger that particular area. ये same trigger यहाँ पे आप देख सकते हो, इस particular 915 की candle पे, यहाँ पे आए, उन्होंने stop loss trigger की, and market gone boom. So you can see this particular thing time and again in different time frames, in different structures, or different areas or different markets as well, right? Even if you're trading forex, even if you're trading cryptos, even if you're trading options, futures, stocks, or commodities or something, any asset that you trade, right? There's an hunting, right? I won't call it stop loss hunting or something, but there's definitely liquidity grabbing or something. Okay. So this is something about the liquidity part, right? Now I would like to ask some of you that if you have got the understanding about the liquidity part, right? Just say me a yes or something. Just type yes or something so that I could get to know. I think people are replying in thumbs up. Exactly, I got it. Some Okay. people have little understanding. So, what may do you? Okay, let's take questions at the end. Yeah. I'll park my thought. Okay, that would do. So now let's talk about options, and we'll merge both of things together in that particular case, right? Let's see this particular thing, right? So now whatever I'm going to tell you,
if someone has a sound understanding about the options, they can get what I'm trying to say, right? First of all, let me explain what options actually are, right? First, let me explain that particular thing to you guys. So, um, options basically are like insurances, right? Options basically are like insurances that you take from some insurance company, right? Insurance company, right? Let's say you are into your 20s, right? And you would like to have an health insurance or something, right? You go to an insurance company and you tell them that, okay, I am willing to pay the premiums each and every month, right? But whenever I'm ill, I'm sick, or I'm unhealthy, you are supposed to give me the money which I need for my treatment. And this is the conversation, and this is the deal between you and the insurance company. This is something that happens, right, in that particular case, right? But here's the thing: you give your premiums each and every month, and let's say nothing happens to you in a particular point of time. Nothing happens to you. You don't get sick or something, right? So whatever premiums that you have paid to your insurance companies, they completely vanishes. I mean, the value of those premiums go to zero. They are worthless, right? If nothing happens to you, right? And you might have done some mistakes while doing the applications or something. If you have done some mistakes, the insurance company will find a reason to not pay you off when you are sick or something, right? So they'll try to find each and every reason to not pay you off. Okay? This is how the insurance companies actually work, right? And they are big enough. I mean, they are big enough, right? If they are profitable and they are still in the market, right? Let's say I'm paying them 5,000 rupees for a month, right? 5,000 rupees for my health insurances to give me cover for a longer picture of time, right? 5,000, that means on an annual basis I'm giving them 60,000 rupees, right? 60,000 मैं उनको insurances के लिए दे रहा हूँ, right? 2 साल मैंने प्रीमियम्स दिए, 1,20,000 का प्रीमियम मैं उनको दे चुका हूँ। अगर मेरी तबियत सच में खराब होती फॉर सम रीजन, अगर सच में होती, राइट, मुझे 20 लाख का अगर मुझे नीड है, राइट, मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ, मुझे चोट वगैरह लगी है, कुछ एनीथिंग कुड हैपन, राइट, तो 20 लाख रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी। मैंने उनको कितना दिया था? मैंने उनको 1,20,000 2 साल के ड्यूरेशन में दिए, राइट। बट वो अगर मुझे 20 लाख दे के भी अगर मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं, राइट, दैट मीन्स दे आर प्रॉफिटेबल। कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो उस इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर पाएगी, वी ऑल नो दैट, राइट? तो दे आर सस्टेनिंग इनटू द मार्केट्स एंड जस्ट बिकॉज दे आर प्रॉफिटेबल, राइट? सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, जो ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, अगर सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो इट्स प्रीटी मच द सेम। एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन बायर इज समवन हु पेज द प्रीमियम, राइट? एक इंश्योरेंस लेने वाला बंदा, इफ मी आई पे द प्रीमियम, ऑप्शन बायर पेज द प्रीमियम, एंड देयर इज अ ऑप्शन सेलर हु सेल्स द इंश्योरेंसेस। इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़ी है, वो इंश्योरेंसेस सेल करती है, आपसे प्रीमियम लेती है, तो ऑप्शन सेलर आपसे प्रीमियम लेता है और आपको ऑप्शंस सेल करते हैं। इट्स प्रीटी मच द सेम। अब अगर वो पोजीशन जो मैंने ली है, जो ऑप्शन मैंने खरीदा है, राइट, अगर मैंने इंश्योरेंस लिया और जो मैंने सोचा था वो प्रॉब्लम सच में हो जाती है, मैंने सोचा था मेरी तबीयत खराब हो सकती है, मेरी तबीयत सच में खराब हो गई, तो उसके लिए मुझे बड़ा सम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। सिमिलरली ऑप्शंस में भी अगर मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, उसके लिए मैंने प्रीमियम दिया था अपने ऑप्शन सेलर को, और अगर मार्केट वहां से सच में ऊपर चली जाती है तो उसके लिए मुझे बड़ा सम देगा मेरा ऑप्शन सेलर। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन मैंने किस प्राइस में लिया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये चीज ऐसे ही फंक्शन करता है, ठीक है? ऑप्शन बायर एक प्रीमियम देगा ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन सेलर एक इंश्योरेंस कंपनी की जैसा है। एट द सेम टाइम अगर मैं जो सोच रहा हूँ और ऑप्शन बायर, मी बीइंग अ बायर, अगर मुझे जो सोच रहा हूँ, मैं मुझे लग रहा है मार्केट नीचे गिर गई, मैंने पुट्स दिया है और पुट्स के प्रीमियम्स मैंने सेलर को दिए, मार्केट अगर सच में गिर जाती है तो ऑप्शन सेलर मुझे पे ऑफ करेगा इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट? तो दिस इज समथिंग अबाउट द ऑप्शंस। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको लिक्विडिटी जोन्स के साथ मर्ज कैसे करना है, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? ओके, okay, let's say, uh, let's assume I'm bearish in this particular area, ठीक है? um,
A lot of people will be bullish यहाँ पर, क्योंकि मार्केट एक गैप अप हुआ है, गैप अप काफी शार्प था। 100 पॉइंट्स का गैप अप, आई मीन समवेयर अराउंड 0.45 to 0.5% निफ्टी में बहुत ज्यादा होता है, राइट? ऐसे गैप अप के बाद मोस्टली प्लेयर्स बाई की साइड की ट्रेड लेंगे। आप सब में से बहुत सारे लोग हो, आपके भी सिमिलर थॉट्स होंगे, मार्केट बुलिश है, आप वहां पे बुलिश ट्रेड्स लोगे ऑन ओवर। बट आपको सबसे पहले वहां पे देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली क्या है। was in it was near around the institutional selling zone. This is an institutional selling zone or something, और यहाँ से एक sharp sell off आया, right? After a few moments of time, if you'll ask me, I would have taken a short position on the market इस particular area में, right? अब इस particular area में अगर मैं short position लेता हूँ, अगर futures को इस्तेमाल करके, फ्यूचर्स को इस्तेमाल करना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, राइट? रिस्की क्यों हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस कि फ्यूचर्स पे यू वन ऑन वन, लेट्स से व्हाटएवर मनी यू आर गोइंग टू मेक, अगर मार्केट नीचे गिरती है 100 पॉइंट तो यू विल मेक मनी ऑन 100 पॉइंट्स। मार्केट आपके अगेंस्ट अगर 100 पॉइंट्स जाती है तो यू लूज मनी ऑन द 100 पॉइंट्स। मेरे पास कोई एज नहीं रहेगा, राइट? तो चाहता हूं कि मैं मार्केट पे बियरिश भी रहूं, राइट? और मैं थोड़ा एज भी बना के रखूं। एज का मतलब है, मतलब बाकी लोगों के ऊपर मेरे कुछ प्रोबेबिलिटीज बेटर हो बाकी लोगों से, बाकी जो मेरे और भी कॉन्टेस्टेंट्स है, जो बाकी और भी पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के, उनसे बेटर मेरा कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी रहे। अभी क्या हो सकता है, एक बार सोचते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपसे प्रीमियम्स लेती है, लेट्स से कि मुझसे प्रीमियम्स लिए, राइट? उन्होंने 2 साल में 1,20,000 रुपया लिया मुझसे। उन्होंने मुझे इंश्योरेंस के लिए 20 लाख मुझे पे ऑफ किया मेरी तबीयत जब खराब हुई। उन्होंने 1:20, राइट? 1 लाख लेके, लगभग 1 लाख लेके मुझे 20 गुना दिया है 2 साल के लिए सिर्फ। उनको तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया। आप सभी को लगेगा कि इस हिसाब से तो इंश्योरेंस कंपनीज को लॉसेस होनी चाहिए, राइट? बट वो बिजनेस में अभी भी है। दे हैव some strong understanding about the financial markets, right? उनको strong understanding है वो financial products के बारे में, financial markets के बारे में, this money thing, वो ये चीजें function कैसे करती है ना, they have an edge, right? अगर मार्केट में वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं तो they have some edge on us, हमारे ऊपर वो प्रॉफिट बना लेंगे one way or another, one day or another. Similarly, option selling is something like that only, ठीक है? Option selling is pretty much the same, right? इट्स लाइक रनिंग अ कसिनो। एक गैम्बलर आता है, राइट? एक गैम्बलर आता है, एक कसिनो में जाता है, ठीक है? कसिनो में जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पे क्या होगा? गैम्बलर के पास, लेट्स से कि उसके पास 10,000 रुपीज है हाथ में, उसके गैम्बलर के हाथ में लगभग 10,000 रुपए है, ठीक है? बट एट द सेम टाइम जो कसिनो है वहां पे लगभग उनने 100 करोड़ के रिसोर्सेज लगा के रखे हुए, 100 करोड़। वो पर्टिकुलर पूरा सेटअप उनने जो लगाया है उसमें करोड़ लगे हैं, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में करोड़ लगे हैं, राइट? लेट्स से वो पर्टिकुलर सेटअप उनका है, वो 100 करोड़ के अबाउट है ऑन ओवर, ठीक है? वो गैम्बलर के हाथ में लगभग 10,000 रुपए है, ठीक है? अब वो पर्टिकुलर गैम्बलर स्टार्टिंग में उसने एक ऑड्स, एक पर्टिकुलर गैम्बल करा, कुछ ट्राई करा उसने, ही वॉन समथिंग, राइट? बट उस प्रोसेस को अगर वो बार-बार रिपीट करेगा ना, वो बार-बार अगर वहां पे गैम्बल करेगा, बार-बार ट्राई करेगा, बार-बार बेट करेगा, राइट? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ही विल लूज आउट, राइट? हम सभी एक वर्ड को, हमने एक पर्टिकुलर फ्रेज बार-बार सुना होगा, द हाउस ऑलवेज विंस। इसका मतलब है कि जिसके जो गैम्बलिंग करवाता है, दे हैव द ऑड्स इन देयर फेवर, राइट? तो इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, if you are on casino, or if you are an insurance company, you have an edge on insurers, जो जिसका आप इंश्योरेंस कर रहे हो। पहला, अगर इंश्योरेंस कंपनी हो तो इंश्योरेंस के ऊपर एक एज है, अगर एक कसिनो है तो उनका जो पर्टिकुलर गैम्बलर्स उनके ऊपर एज है, और अगर ऑप्शन की बात होती है, ठीक है, तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनकी एज ऑप्शन बायर्स के ऊपर है, ठीक है? अब इसके बारे में वी कैन टॉक समटाइम सेल्फ, ये खुद में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आई वोंट गो इनटू स्किन डीप ऑफ दैट, राइट? तो यहाँ पे है कि मेरे को एज कहां से मिलेगा, तो मैं अगर ऑप्शन सेल करूंगा इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट? तो अब इसको हम दोबारा देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। मान लो कि दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया जहां पे मुझे एक शॉर्ट लेना है मार्केट के ऊपर मैं बेयरिश हूं एंड आई वांट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सिंथेटिक फ्यूचर्स को क्रिएट करूंगा, सिंथेटिक फ्यूचर्स को मैं ऑप्शन सेल करके फिर हेज करूंगा। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, राइट?
लेट्स से कि मैं मार्केट पे भी बियरिश हूँ, राइट, मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बियरिश हूँ, तो मैं एक अभी स्प्रेड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैं उसको कैसे करूंगा। उससे क्या होगा कि अगर मार्केट लेट्स से पर्टिकुलर यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी चली जाए, अगेंस्ट भी, लेट्स से कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर एरिया का प्राइसिंग क्या है 341, मार्केट अगर मेरे से 1-1.5% अगर अगेंस्ट भी चली जाए ऑन एक्सपायरी में, क्योंकि मैं बियरिश हूं, तो मैं थोड़ा बहुत मैं बियरिश ही रहूंगा, राइट, बट एट द सेम टाइम मैं अपने आप को थोड़ा स्पेस दे रहा हूं कि मार्केट अगर 2% मेरे अगेंस्ट भी चली, 1% मेरे अगेंस्ट भी चली जाए, तो मेरे को लॉसेस ना हो। ये ऑप्शन सेलिंग आपको प्रोवाइड करता है, ये एज, ये पर्टिकुलर स्पेस, ये पर्टिकुलर आइडिया आपको ऑप्शन सेलिंग प्रोवाइड करता है, ये कुशन ऑप्शन सेलिंग प्रोवाइड करता है, राइट। और अगर मार्केट में मैं बियरिश था, मार्केट मेरे फेवर में चली गई, तब तो मैं पैसे बना ही लूंगा, राइट, तब तो गेंद मेरे पाले में है, तब तो गेम मेरे जोन में है। लेकिन जब मेरे जोन में नहीं है, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया है, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रैटेजीज जब क्रिएट करोगे, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जब आपकी एक रेंज के बियॉन्ड भी चली जाए ना, तो आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। अभी मान लो कि अभी जिस सिचुएशन पे मार्केट है, ठीक है, अभी जिस सिचुएशन पे मार्केट है, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है, मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो मैं एक स्ट्रैटेजी बना के आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है, लेट्स से अगर मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड तो लूंगा, मैं फ्यूचर्स खरीदूंगा, बट फ्यूचर्स को मैं हेज करूंगा ऑप्शन को सेल करके। अब ये कैसे होगा, सिंथेटिक फ्यूचर्स को कैसे ऑप्शन सेल करके हेज करना है और समथिंग लाइक दैट, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई यहाँ पे, राइट। मैं मार्केट पे हूँ यहाँ पे थोड़ा बुलिश, राइट, तो यहाँ पे बुलिश के केस में मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पे एक सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करूंगा, बट थोड़े स्पेस के साथ, राइट। सिंथेटिक फ्यूचर्स होते हैं बेसिकली एट द मनी ऑप्शंस को हम बाय और सेल करते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन को बाय करेंगे, एक ऑप्शन को सेल कर देंगे, राइट। अगर मैं मार्केट पे बुलिश हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे पुट्स को सेल करूंगा और कॉल को बाय करूंगा, ठीक है। मार्केट पे अगर बियरिश हूँ, तो कॉल को सेल करूंगा और पुट्स को बाय करूंगा। ये फ्यूचर्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। जो फ्यूचर्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, निफ्टी के फ्यूचर्स बाय और सेल करें, उसका ऑब्वियसली चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। एक लॉट भी अगर आप करोगे तो इट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 300 रुपीस और समथिंग। तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंथेटिक ऑप्शंस, इट बिहेव pretty much the same like the nifty futures or something, but इस पर्टिकुलर केस में आपका ये फायदा है कि यहाँ पे आपके चार्जेस वो 100 रुपए के आसपास ही हो जाएंगे अगर आप एक लॉट पे काम कर रहे हो, राइट, बिकॉज आप यहाँ पे एक लॉट सेल कर रहे हो, एक लॉट बाई कर रहे हो, राइट। तो जो सेम फ्यूचर्स का काम होता है, सेम यहाँ पे आपको ऑप्शंस के इस्तेमाल करके ही हो जाता है और 100 रुपए में ही हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली मैंने एक सिंथेटिक फ्यूचर ही बनाया है, राइट, बट इसमें थोड़ा डिस्टेंस रखा है, राइट। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेल करा है, पुट्स को सेल करा है। पुट्स को सेल करने का मतलब है मैं मार्केट पे बुलिश हूँ, राइट। Vishal, are you sharing another tab? Okay, okay. Just a moment, just give me a moment, right? Are यहाँ पे आपको चार्ट से भी दिख रहे हैं क्या? हाँ, चार्ट से दिख रहा है। I think Okay, so. just give me a moment, just give me a moment. कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको रिपीट करना पड़ेगा। थैंक्स somebody for pointing it out. Sure. This is also telling how many are listening. It's a good thing. Yeah. So can you see the charts right now? I mean, see the sensible tab right now? Yes. Okay, great. So let's say this is an option chain of Bank Nifty. Okay. So here we can see that if you want to create a synthetic future or something which is bullish on the market, आपको अगर फ्यूचर्स बाय करने होते तो आप सिंपल निफ्टी के फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे जाते हो, बाय कर लेते हो, राइट। बट उसमें आपके चार्जेस क्या लगते हैं? चार्जेस आपको लगते हैं लगभग 300 रुपए के आसपास सिंगल लॉट के लिए, 250-300 समथिंग लाइक दैट, राइट। बट उस सेम चीज को आप 100 के कॉस्ट पे ही कर सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप मार्केट पे बुलिश हो, आपको फ्यूचर्स को बाय करना है, आप सिंथेटिक फ्यूचर्स को यहाँ पे बाय कर लो। कैसे? यू कैन जस्ट बाय एंड ऐड द मनी कॉल और सेल एंड ऐड द मनी पुट, राइट। यहाँ पे इसको बाय करो कॉल को और इसको सेल कर दो।
you are long on the market in that particular case, right? आपके चार्जेस भी कम हो गए, तो दिस इज समथिंग आई एम डूइंग। अगर मैं मार्केट पे यहाँ से बुलिश हूँ, मैं भी सेम ही पोजीशन लेने वाला हूँ, राइट? बट यहाँ पे मैंने जो पर्टिकुलर एट द मनी ऑप्शंस को ना खरीद के बेच के मैंने उसके बीच में थोड़ा गैप रखा है, राइट? आई टेल यू द रीजन राइट नाउ, ठीक है? बट अभी के लिए इसको ऐसे ही मानते हैं। तो मैं मार्केट पे बुलिश हूँ, तो बुलिश हूँ तो फिर मैं कॉल्स को वहां पे बाई करूंगा और पुट्स को सेल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक पुट को सेल करा है जिसका प्रीमियम 129 रुपए है। एट द सेम टाइम मैंने एक कॉल को बाई करा है जहां पे 121 रुपए है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, 129 के ऑप्शन को सेल करा है, 121 के ऑप्शन को बाई करा है, तो ओवरऑल 8 का क्रेडिट मेरे पास आया है, राइट? अब क्योंकि मैं मार्केट पे बुलिश हूं, तो मैंने बुलिश फ्यूचर तो मैंने बना लिया, ये बुलिश फ्यूचर तो मेरा बन गया जिसमें 8 रुपए का क्रेडिट है। बट एट द सेम टाइम मैं उसको हेज करूंगा, राइट? कि अगर मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट चली गई तो मुझे अपने आप को और भी कुशन देना है, तो मैं उसके अगले ऑप्शंस को ही सेल कर दूंगा। क्योंकि मैं मार्केट पे बुलिश हूं, तो मैं कॉल को सेल करूंगा उसको हेज करने के लिए, फिर राइट? तो फिर मैंने कॉल सेल करा है उसके जस्ट एक ऑप्शन के बाद का, दैट इज गिविंग मी प्रीमियम 100 रुपीज। और मैं अपने डाउनवर्ड प्रोटेक्शन को भी मतलब हेज करने के लिए फिर मैंने एक ऑप्शन को बाय कर लिया 54 रुपए पे, राइट? तो ओवरऑल इस केस में मेरे पास एक अच्छा खासा क्रेडिट भी बन गया है और मेरे को एक स्प्रेड भी बन गया ओवरऑल, जो कि मतलब एक अच्छे रीजन में स्प्रेड आउट है। मैं मार्केट में बुलिश भी प्ले ले गया और एट द सेम टाइम अगर मेरी मार्केट अगेंस्ट भी जाती है तो भी मेरे को एक स्पेस को दे देगा। तो अब इसको देखते हैं हम लोग पे ऑफ ग्राफ के हिसाब से। लेट्स से अभी अभी जहां पे मार्केट है, अगर मैं इस लेवल से मार्केट के ऊपर बुलिश हूं, ठीक है, तो मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगा। 3 दिन के बाद बैंक निफ्टी की लगभग एक्सपायरी है, ठीक है? अभी जहां से मार्केट है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया से, क्योंकि मैं बुलिश हूं, आई एम गिविंग यू अ पॉइंट, अगर मैं बुलिश हूं तो ही मैं डायरेक्शनल ट्रेड ले रहा हूं। मैं बुलिश नहीं होता तो मैं ये थॉट नहीं लेता। बुलिश उसके बाद अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाती है तो मेरे को थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए। ये ऑप्शन सेलिंग से आपको फायदा होता है। मैं मार्केट पे बुलिश हूं, मार्केट अगर मेरे फेवर में चली गई, ठीक है, अगर फेवर में चली गई पहले उसकी बात करते हैं। मार्केट अगर मान लो मेरे फेवर में चली गई और मान लो मार्केट 1.5% से बियॉन्ड, 1.5% 1.5% के बियॉन्ड अगर मेरे फेवर में चली गई, राइट? तो मैं यहाँ पे अपने कैपिटल के ऊपर, मैं यहाँ अपने कैपिटल के ऊपर समवेयर अराउंड 7% बनाऊंगा। 7% का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, कैपिटल के ऊपर। इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है? बट ये फिर रिस्क के साथ भी आता है। अब यहाँ पे रिस्क क्या है ये हम देख लेते हैं। मान लो कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई, आप अपने पोजीशन को सही टाइम पे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, राइट? और अगर मार्केट एक्सपायर आपके अगेंस्ट हो गई, तो आपको आपके कैपिटल पे जो आप यहाँ पे देखते हो, मैक्सिमम लॉसेस 20% के अबाउट का भी हो सकता है, राइट? बट ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट में एक बार देखोगे, 85% प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पे पैसा बना लोगे, राइट? और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में चली जाए? तो 2308। अब इस पर्टिकुलर एरिया में जो सबसे मैजिकल पार्ट है, क्योंकि मैं मार्केट के ऊपर बुलिश था, मार्केट अगर 1.5% भी मेरे अगेंस्ट जाती है, 1.5%, 1.5%, 1.5% बैंक निफ्टी में, इट्स अ ह्यूज नंबर। इट इज समवेयर अराउंड 700 पॉइंट्स। मार्केट मेरे 700 पॉइंट्स जाके अगेंस्ट और फिर क्लोज हो रही है, तब तक मेरे को कैपिटल के ऊपर 2% का गेन्स हो सकता है, 2.2%, समवेयर अराउंड दैट नंबर, 2.2% ऑन द कैपिटल इन 3 to 4 days। इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है? मेरे को स्पेस भी मिल गया, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट फेवर में चली गई तो भी सब कुछ मेरे फेवर में, तब तो मैं बुलिश था ही, तब तो चीजें सब कुछ फंक्शन आउट सही से कर ही गई, राइट? बट अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, तो दिस इज एन एरिया जहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना प्रॉपर रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज सी मेरे को मैं ये पर्टिकुलर ऑप्शंस का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं मार्केट के ऊपर बुलिश था, और बुलिश था तो बुलिश के केस में सीधा फ्यूचर्स मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता। अगर 100 पॉइंट नीचे गिर गया तो 100 पॉइंट का मेरे को लॉस हो जाएगा। 100 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर चली गई तो मेरे को 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? इट वाज अ टू एज्ड स्वॉर्ड्स, दो धारी तलवार। एक साइड में आप समझ लो, राइट? दिस वाज द गेम। अब ऑप्शंस को इस्तेमाल करके, राइट, मेरा रिवॉर्ड उसी टाइप का है, बट मेरा रिस्क मैनेज हो गया है, ठीक है? मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाती है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आई विल बी ऑन द विनिंग साइड, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मुझे लगता है कि मैं मार्केट पे यहाँ पे बुलिश हूँ, राइट, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज को लगाऊंगा ऑप्शंस को इस्तेमाल करके, ऑप्शंस को मर्ज करके। सिमिलरली इस पर्टिकुलर एरिया में हम एक बार देखते हैं इसको, जहां पे हम लोग निफ्टी को पहले देखा था।
जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशंस को लूंगा, तो निफ्टी पे अगर मुझे शॉर्ट पोजीशंस लेने होते तो मैं डायरेक्टली फ्यूचर्स में नहीं जंप करता। मैं अपने आप को थोड़ा स्पेस देता कि मार्केट अगर इस एरिया में अगर जाती भी, राइट, तो मेरे को थोड़ा कुशन रहे, मेरे को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अपना पीएनएल नहीं देखने के लिए मिले, राइट? मेरे को ज़्यादा सर दर्द ना हो, मार्केट में मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाए, राइट? और ये बेसिकली ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो ये लिक्विडिटी ज़ोन्स के आस-पास में अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से इस्तेमाल करोगे, तो दिस इज़ द बेनिफिट। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है कि मार्केट अगर ये सडनली गैप अप हुआ है, तो You गैप are. अप, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन राइट नाउ? The Yes. charts right now? Yes. Yeah. Okay, great. So, um, saying this particular thing again, let's say if I was bearish on this particular day, the 13th of March, right? And I had a feeling that this particular liquidity will be swept, right? This obviously will come to me. I have an understanding that how liquidities actually function, right? And this is my approach to the markets, right? तो अगर मुझे लगता है यहाँ पे liquidity sweep होने वाली है, अगर liquidity यहाँ से निकलने वाली है, right? और ये चीज अगर literally होता है, right? I would like to give myself an opportunity कि market अगर मेरे against भी चली जाए इतना इस particular range में, let's say कि 1% के about में, तो मेरे पास मतलब ज्यादा losses ना हो, right? Until unless market मेरे brutally against ना चली जाए, ठीक है? तो मेरे पास एक एज रहेगा मार्केट के ऊपर, एंड आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर ट्रेड, राइट? एक और फायदा है ऑप्शंस का इस्तेमाल करने का, ऑप्शन सेलिंग करने का कि सी, जब मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है, राइट, गैप अप और गैप डाउन के केस में मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? रैंडम बाइंग्स और सेलिंग्स बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सी, समवन हु वुड हैव सोल्ड, जिसने यहाँ पे शॉर्ट वगैरह करा होगा, शॉर्ट करके गए होंगे, उनको बहुत ज्यादा लॉसेस दिख रहे होंगे, तो मार्केट ऑर्डर्स पे सेल करेंगे, राइट? रैंडम प्राइसेस पे बाय और सेल करेंगे, राइट? बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ कॉल बाय करके गए होंगे या मार्केट को फ्यूचर्स को बाय करके गए होंगे, उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा, दे माइट बी बुकिंग देयर प्रॉफिट्स और समथिंग, राइट? तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, खासकर गैप अप और गैप डाउन के केस में, नॉर्मल केसेस से भी ज्यादा, राइट? तो ऐसे केस में होता क्या है, यहाँ पे विक्स शॉर्ट अप कर जाता है, विक्स बहुत ही ज्यादा शार्पली ऊपर जाता है। विक्स जब ऊपर जाएगा तो वेगा स्पाइक आता है, वेगा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? और जब वेगा बढ़ा हुआ रहता है तो प्रीमियम्स जूसी होते हैं, ज्यादा होते हैं, राइट? नॉर्मल केसेस से ज्यादा होते हैं, राइट? और जब ज्यादा प्रीमियम्स मिल रहे हैं, ज्यादा वेगा होता है, तो उस पर्टिकुलर केस पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपका एज और बेटर होता है। तो लिक्विडिटी स्वीप के एरियाज में वेगा बहुत ही ज्यादा होता है, वेगा। Someone who has an understanding about the options, they might be getting what I'm trying to say. क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप जोन्स में एग्जैक्टली होता क्या है कि वहां पे बहुत सारे लोगों के रैंडम स्टॉप लॉसेस आते हैं, और जहां पे स्टॉप लॉसेस आते हैं वो मार्केट ऑर्डर्स में अपने पोजीशंस को पुश करते हैं। मार्केट ऑर्डर्स में जब भी वो पोजीशंस को पुश करेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली होगा क्या, रैंडम प्राइसेस पे मतलब आपके एग्जीक्यूशंस होंगे, जिससे क्या होगा कि वोलेटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी और अनरियलिस्टिक फील्स बहुत बार होंगी, राइट? तो ऐसे केसेस में वेगा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट कुड बी द राइट प्लेस अगर आप एक ऑप्शन सेलर, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर एरियाज में मिलती है और यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करके बैठ सकते हो, जो कि मुझे एक एज देता है, राइट? सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, राइट? यही है कि लिक्विडिटी जोन्स में आपको ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, this particular thing is rigged against you, right? This particular system is completely against you, right? But if you're an option seller, ये आपके लिए opportunity है, it's an alternative for you to improve uh, how you approach the markets, right? और markets को समझने के लिए आपको options एक अच्छा tool भी है, right? It provides you a good insight about how the markets actually function. अगर आप option data को ठीक से समझ पाओगे, ऑप्शन चेन को अगर अच्छे से समझ पाओगे, ओआई को अच्छे से समझ पाओगे, आप देख रहे हो कि किस पर्टिकुलर लेवल्स पे राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, किस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अनवाइंडिंग ज्यादा हो रही है, पर्टिकुलर कॉल्स को राइट किया जा रहा है, किसी जगह से अनवाइंड किया जा रहा है, राइट? इन चीजों को देख के आप मार्केट्स के डायरेक्शन को भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट? सो दिस वाज समथिंग, राइट? So that would be it from my end, right? Whatever I had a perception about the market, I've shared with you, right? If you have any kind of questions in this particular topics or this particular area, you can just ask me. I'll be happy to answer those questions in the next 15 minutes or something, right? Thank you so much, Vishal. Let me just stop recording.